Hi kids, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So we have already covered a very much good syllabus, right? And I hope आप सारे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारे पीटी एंड सीटीज आप दे रहे हैं, राइट? तो आई होप आप लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग विद टीटीबी, राइट? टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपेयर करना आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? तो ये जो हम लोग अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, दैट वुड बी द वेरी मच गुड फॉर योर ओलंपियाड्स एंड एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट? So we are going to study for both the things, right? We are getting the knowledge of the Olympiads level so that we can fight them too, right? And school education is definitely very important. That's why we are providing you the concepts or the knowledge about that much too, right? You do know that we prepare for the 6th, 7th and 8th Olympiads with you all, definitely. And definitely we cover up the NTSC, NSCJS, PRMO as well as your school examinations, which is so much important. So I hope you all are going very much with the process, right? And definitely enjoying the process, right? This is a very must thing to do, that you should enjoy the process, right? That it very much, क्योंकि जब आप पढ़ाई को enjoy करने लगते हो ना, तब आपका जो कनेक्शन होता है पढ़ाई के साथ, कंसेप्ट जो आपको नहीं हार्ड लग रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते हैं, वो इजीली आपको आने लग जाते हैं, ठीक है? तो पढ़ाई को एंजॉय करना इज अ डेफिनेटली अ गुड थिंग टू डू, ठीक है? तो आप डेफिनेटली ट्राई करो. If you want any DPP and study material, you can definitely access them through the Telegram channel. You can go over the Telegram app, write the code, that is TTP08 for class 8th, all right, and then just join that, and then you will be having the DPPs and study material. You can definitely access from there. You can see this is the team. So you can see this is the team which is going to help you in prepare all of the things you want to prepare for, like all the Olympiads, all your school examinations, right? So this whole team will be helping you in achieving all your targets, all your targets, goals, everything, all right? So this is an important thing, right? All right, so you all know this thing जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, all right? क्योंकि मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, because this is important, right? Anybody, any students who have ever dreamed of getting, achieving or completing their goals, completing their target, किसी ने भी अगर सोचा भी है, अगर वो इस पैकेजेस को ज्वाइन करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर एट अ वेरी गुड प्लेस जहाँ से वो अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं प्रिपरेशन का, राइट? So definitely I want to tell you about the things. So let me again tell you that you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. You have to go on this website, right? वहाँ पर जाने पर, जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, so what you will be getting, you will be getting such type of packages over there. These are just an example for you, right? So that you become familiar with the process. So these are the two packages over there. आपको क्या करना है, आपको इन packages को study करना है, ठीक है? और आपको क्या करना है, then join करना है. If you really want to कि भाई जो features आपको available है वो आपको चाहिए, तो that means that you should join them, right? You can definitely see that कि हमारा जो 9000 का foundation and Olympiad दोनों का जो पूरा proper package है, वो proper package आपको मिलता है 9000 में, right? And what you will be getting in that comprehensive study material, ये आपको provide होगा from the TTB, right? Recorded and live classes through YouTube, you will be getting that. Homework submission feature through the Google Classrooms, you will be getting that. Bi-weekly quizzes through our website, right? ये जो website है, इस पर आप bi-weekly quizzes attempt कर सकते हैं. And periodic test papers, वो भी हमारी website से आप लोग attempt कर सकते हैं. So all such features are provided to you in just 9000. And मैं आपको और भी एक बात बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस 9000 पे भी 30% डिस्काउंट मिल सकता है, राइट? नेक्स्ट थिंग जो है, ये एक दूसरा पैकेज है जहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको नहीं चाहिए ये मटेरियल, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं, ठीक है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, बट यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए. बहुत बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया आप कहाँ स्टैंड करते हैं. तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज इफ यू थिंक यू आर नॉट, यू हैव ऑलरेडी रेड इनफ, या फिर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इनफ,
you should definitely go for the test series, right? And the cost is 3,500, right? That's it. But if you apply my code over there, you will be getting 30% discount on this too, right? So these are the benefits of for all of you, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में, राइट? नाउ अब जब भी आप इन पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यू विल बी फॉरवर्डेड ऑन द प्राइस डिटेल्स पेज, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड लगाना है CY Live, राइट? आपको क्या करना है, ये कोड लगाना है, ठीक है? CY Live कोड लगाना है। जब आप ये कोड लगाएंगे तब आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी लेट्स से 9,000 है तो इसका 30% जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा, लेट्स से 3,500 है उसका 30% आपको डिडक्ट हो जाएगा, सो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट? अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाय पैकेज पे क्लिक करना है, एंड देन आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, और ये जो ऑप्शंस हैं आप डेफिनेटली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन पे इट, राइट? नाउ ये देखिए, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द नंबर फॉर ऑल योर क्वेरीज. If you have any query regarding the packages, regarding the features of the packages, regarding the cost of the packages, anything, if you have any query, you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved there. All right, so this was the important thing I wanted to tell you. ठीक है? तो अब आप फटाफट से अपनी बुक्स एंड कॉपीज निकाल लीजिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल बी watching the whole lecture, you will be making the proper notes and you will be revising them on the daily basis. हम लोग already अपनी 2 chapters finish कर चुके हैं, that's why now it's important कि अब आप क्या करें, उन chapters को revision करना शुरू कर दें, ताकि last में जब exams का time आता है ना तो पूरा burden up नहीं हो जाए, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद हो जाएंगी जब तक आपका एग्जाम टाइम आएगा, ठीक है? तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, है ना? तो आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो एग्जाम्स हम आपके ले रहे हैं बाई वीकली क्विजेस, उसमें भी हम लोग आपको यही तरीका बेस्ट होगा कि आप क्या करें, रिविजन करें एंड देन आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, तो बहुत ही बढ़िया होगा, राइट? आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये जो है क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट? तो लेट्स डू दैट फर्स्ट, है ना? हम लोग पहले इसको कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी आवर लेक्चर, ठीक है? ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज बीइंग अप्लाइड ओवर एन एरिया मेजरिंग 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एंड कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट. ऑल वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द प्रेशर, राइट? हमें प्रेशर का भी एक ही फॉर्मूला पता है, एंड दैट इज F upon A, that is force upon area. So let's do it. सबसे पहले तो हम given लिख लेते हैं. What are the given things here? Given क्या है? Force है, 150 न्यूटन का force है, ठीक है? तो we will be writing that force F equals to 150 न्यूटन. And जब आप questions करें तो साथ साथ ये भी चेक करते जाएं that जो given values हैं वो SI में है कि नहीं है, और अगर SI में नहीं होती हैं तो आप ये चेक कीजिए कि आंसर आपको किस में पूछा जा रहा है. अगर वो SI में पूछा जा रहा होगा तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, ठीक है? तो अभी हमने क्या देखा है कि भाई 150 न्यूटन फोर्स है एंड द एरिया इज 0.5 मीटर स्क्वायर. आप यूनिट्स के बेसिस पे भी पहचान सकते हैं कि भाई मीटर स्क्वायर तो किसका यूनिट होता है, एरिया का. दैट्स वाई 0.5 जो वैल्यू है वो एरिया की वैल्यू है, ठीक है? इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं. तो ये हमने देख लिया है एरिया, ठीक है? दिस इज द एरिया एंड दिस इज 0.5 मीटर स्क्वायर. नाउ जस्ट कैलकुलेट द प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? और फिर हम क्या लिखेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 0.5. देखेंगे इसे कैसे करते हैं. जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को हम हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने ही ऊपर न्यूमरेटर में 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? विद 1 भी होना चाहिए, ठीक है? हमने 10 क्यों चूज करा, बिकॉज देयर इज 1 नंबर आफ्टर द डेसिमल, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी हैव डन दैट. तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज सो मच इजी टू डू. 5 3s are 15, all right, and 2 zeros, so there are 2 0. So we are getting what, 300.
अब मुझे बताइए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा पास्कल, बिकॉज पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी एसआई यूनिट है, यहाँ पर भी एसआई यूनिट है, तो जिसमें जो प्रेशर है उसमें भी एसआई यूनिट होना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दी 300 पास्कल, ठीक है। तो अब आपको हो सकता है सभी बच्चों का सेम आया हो सकता है किसी किसी का डिफरेंट भी आया हो, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से आपने का ये आंसर नहीं आया है, ऑलराइट। सो आप इसे फटाफट नोट भी कर लें। चलो, जो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था उसको भी फटाफट से करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, नाउ दिस इज अ वेरी थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। व्हाट विल बी द चेंज इन द प्रेशर इफ द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं, भाई क्या गिवन है। हमको सिचुएशन ये गिवन है कि भाई क्या होगा प्रेशर का जब जो एरिया है वो ट्रिपल हो जाए लेकिन फोर्स कांस्टेंट रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि P इक्वल्स टू F अपॉन ए है, ठीक है, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये जो एरिया है ये एरिया हमने ट्रिपल कर दिया है, ठीक है, सेम फोर्स है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू थिंग्स, ठीक है, न्यू जो चीज़ें हैं जैसे कि न्यू एफ, हमारा जो नया फोर्स है, ठीक है, इट शुड बी द सेम, है ना, तो ये तो एफ का एफ ही है, ठीक है। न्यू एरिया जो होगा, अगर हम न्यू एरिया की बात करते हैं तो वो कितना बन जाएगा 3a, वाई 3 बिकॉज इट इज ट्रिपल, है ना, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है तो इट्स बिकम 3a। नाउ द न्यू प्रेशर विल बी, जो आपका नया प्रेशर होगा वो क्या होगा, नया फोर्स डिवाइडेड बाय नया एरिया, सो इट शुड बी F अपॉन 3a, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 F अपॉन a क्या है, F अपॉन a इज P, ठीक है, नॉर्मल P, तो F अपॉन a विल बी P, तो इट वुड बी P बाय 3। सो यू कैन से दैट जो नया प्रेशर है, जो नया प्रेशर है वो 3 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो यू कैन से कि भाई वो 1/3 रह जाएगा, ठीक है, अपना ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 रह जाएगा। सो दिस इज द न्यू प्रेशर, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज, ठीक है, ये चेंज हुआ है प्रेशर में बिकॉज इट बिकम्स दी 1/3 ऑफ दी पुराना प्रेशर, ठीक है, द ओल्ड प्रेशर। सो दैट इज द सोल्यूशन। तो अगर आपको वैल्यूज नहीं भी दी जाती है, लेट्स से आपको न्यूमेरिकल नहीं दिया है, आपको सिंपली क्या दिया है, आपको सिंपली बोल दिया है कि अगर एरिया ट्रिपल हो जाए, फोर्स डबल हो जाए, एरिया 1/2 हो जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विद दिस प्रोसीजर, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली पहले तो अपना बेसिक फॉर्मूला लिखो, राइट, फिर आप नई चीज़ों को देखो कि भाई क्या क्या नया दिया है, क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको नए प्रेशर में वैल्यू इनपुट करो एंड देन मैच इट विद द इक्वेशन 1। जैसे ही मैच करोगे आपको पता चल जाएगा F बाय ए इज इक्वल्स टू P, सो यू कैन राइट F बाय ए की जगह पर आप P लिख सकते हैं, राइट। सो आई हैव रिटन दैट एंड 3 का 3, दैट्स व्हाई आई गॉट टू नो दैट द न्यू प्रेशर इज व्हाट, द 1/3 ऑफ द पुराना प्रेशर, राइट। सो आप इसको फटाफट से नोट कर लो एंड दैट्स हाउ यू शुड डील विद ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि मैं और भी आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको दिए थे एज अ होमवर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लेक्चर, ठीक है। तो अब अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एंड आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज इट,
ठीक है, होता क्या है, क्या ये एक्चुअली में हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वट एवर। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें अपन लोग डिस्कस करेंगे टुडे। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, डज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर? क्या आपको लगता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो भी कंटिन्यूसली? डू यू फील दैट? जब आप ऐसा अपना हैंड हिला रहे हैं, आर यू फीलिंग एनी टाइप ऑफ प्रेशर ऑन योर हैंड? कुछ ऐसा लगता है आपको जब आप वॉक कर रहे हैं, जब आप बैठे हुए हैं, आप अभी वॉचिंग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इस वक्त प्रेशर है एयर का? डू यू थिंक दैट? आपको फील हो रहा है? आपको फील नहीं हो रहा है? ऑलराइट, देखो हमको फील नहीं होता, बट देयर इज अ प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। एयर की वजह से भी प्रेशर है हमारे ऊपर। सोचो तुम, पढ़ाई का तो अलग ही अलग प्रेशर है, एयर भी हम पे प्रेशर लगाता है। सोचो कितना मुश्किल जीवन है हम लोग का। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसा बलून दिख रहा है जिसको हमने अभी तक नहीं फुलाया है, ठीक है, हमने अभी तक इसके अंदर एयर को नहीं भेजा है, ठीक है। सो दिस इज द इन्फ्लेटेड बलून। अभी ये बेचारा अपना ओरिजिनल शेप में है, ऑलराइट। लेकिन जब हम इसको फुलाते हैं तो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स लाइक दिस। उसका शेप चेंज हो जाता है ना, ये स्ट्रेच हो जाता है, इसका जो बाउंड्रीज हैं ये स्ट्रेच हो जाता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि क्यों स्ट्रेच हुआ, वाई, क्यों ऐसा जो शेप है इसका वो क्यों चेंज हुआ, द रीजन बिहाइंड दिस इज द एयर प्रेशर। यस इट इज। आप कुछ तो सोचेंगे, इसका अंदर से कोई ना कोई एरिया तो है, राइट, इट इज दी लाइक बलून। तो अगर वो स्ट्रेच हो रहा है तो उसका जो एरिया है दैट इज देयर, बिल्कुल सही बात है, उसका पूरा सरफेस का जो उसका अंदर का सरफेस है उसके पास एरिया है। एंड जैसे ही हमने इसके अंदर एयर को फिल किया तो वहां पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा एयर जो है वो फोर्स लगाएगी, बिकॉज एयर वांट्स टू गो आउट, राइट, एयर वांट्स टू गो आउट। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह बैठने वाले नहीं होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। सो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग। तो जब कभी हमने उसको बलून के अंदर फिल कर दिया तो उसको तभी भी मूव ही करना है। एंड दैट्स वाई वो क्या करता है, बलून का जो सरफेस है, बलून का जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, उस मटेरियल, जिस मटेरियल से बलून बना है, वो उस मटेरियल पे जो एयर है वो फोर्स लगाएगा। अब वी नो दैट फोर्स व्हेन कंबाइंड विद एरिया विल गिव अस द प्रेशर, राइट, एंड दैट्स हाउ देयर इज द एयर प्रेशर ऑन द बलून, एंड दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर इन साइज। और जब बहुत ज्यादा एयर फिलअप हो जाती है, लाइक बलून का जो मटेरियल है वो गिव अप कर देता है कि नो इससे ज्यादा नहीं जो है स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो उस वक्त क्या होता है, बलून बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज द एयर प्रेशर, ठीक है। मैं और भी आपको आगे बताती हूँ कि भाई किस तरीके से हम लोग एयर प्रेशर को जो है बताते हैं। नाउ दिस इज द कंक्लूजन फॉर यू ऑल दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो गैसेस जो होती हैं उसको जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे, आइदर बलून, नाउ इट इज द बलून इज द कंटेनर फॉर दैट एयर जो कि हम उसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है, उस एयर के लिए। और भी कहीं पर भी अगर लेट्स से हम किसी बॉक्स के अंदर अगर हम उसमें रख देते हैं, ठीक है, तो इफ वी डू दैट, अगर ऐसा हो जाता है, सो वी कैन से कि भाई वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको डेफिनेट सी बात है एक प्रेशर मिलेगा, राइट। जो गैसेस होंगी, लेट्स से आपने बॉक्स में बंद कर दिया है, एंड उस बॉक्स का जो सरफेस होगा उस पे वो एयर बाहर जाने के लिए फोर्स लगाएगी, बिकॉज एयर वांट्स टू गो आउट, राइट। तो वो फोर्स लगाएगी अपने कंटेनर पे, ठीक है, जिस भी कंटेनर के अंदर वो बंद है, राइट। तो वो फोर्स लगाएगी एंड डेफिनेट सी बात है एरिया होगा, तो फोर्स विद एरिया कंबाइंड, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, प्रेशर मिल गया। सो इट डज अप्लाई प्रेशर, राइट, सो इट डज अप्लाई प्रेशर, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बोलो, क्या सचमुच में अगर ऐसा है, अगर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई होता है, तो आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग अभी जब खड़े हुए हैं तो दैट मीन्स हमारे स्किन पे, हमारे पूरे ऊपर क्या एयर प्रेशर लग रहा है? अभी आपको फील हो रहा है ये बात? बिकॉज वी डू हैव एन एरिया, ठीक है, हमारा स्किन का एरिया है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी का एरिया है, इज इट ट्रू? एंड जो एयर है आसपास वो हम पे फोर्स लगाती है, बिकॉज एयर वांट्स टू गो अवे, एयर वांट्स टू वॉक अवे, राइट। सो वो जब भी जा रही होती है वो डेफिनेटली फोर्स लगाती है, and because we have an area and the force applied by air, and this will create a pressure on us, and that is known as the atmospheric pressure, ठीक है। मैं और भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट दिस इज द वन थिंग यू शुड नो दैट
अब देखेंगे यहाँ पे दिस इज द अर्थ एंड आई विल बी टेलिंग यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये अर्थ आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिस इज द आर अर्थ। अब आप ये मुझे बात बताइए कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ की सरफेस पे, राइट। एंड क्योंकि वो सरफेस है तो इसका मतलब उसका कुछ एरिया भी होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एवरी सरफेस हैज एन एरिया, राइट। तो यहाँ पर आप जो है आप बोलेंगे कि अर्थ का सरफेस है, राइट, इसका पूरा जो सरफेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर लैंड है, राइट दैट। तो यहाँ पे लेट्स से हम लोग कहाँ रहते हैं, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, वी आर लाइक दैट, ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अर्थ के चारों तरफ क्या एयर का ब्लैंकेट है या नहीं है। सभी को ये बात पता है ना कि एयर का ब्लैंकेट है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल पाता है, राइट। सो लेट्स मेक दैट बाउंड्री, ठीक है। क्या करते हैं कि भाई एयर के चारों तरफ, सॉरी अर्थ के चारों तरफ जो है, देखो मैं धीरे धीरे डॉटेड लाइन बना रही हूं, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ मैंने क्या किया, एक एयर के ब्लैंकेट को बना दिया, ऑलराइट। देखो मैंने एक अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट बना दिया, ठीक है, डॉटेड वे में बनाया मैंने, ठीक है। तो नाउ इट इज विजिबल टू यू ऑल, कूल। अब देखते हैं यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, अर्थ के चारों तरफ एयर के ब्लैंकेट को मेंशन किया, डॉटेड लाइन से मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बोलिए कि क्या एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास वेट तो होगा, कुछ मास तो होगा, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसके पास मास होता है। तो भाई एयर के मॉलिक्यूल्स के पास भी मास होगा, डेफिनेट सी बात है, राइट। क्योंकि अब उनके पास मास है तो इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि ये जो अर्थ है उसके ऊपर ग्रेविटी लगाती ही लगाती है, बिकॉज जिस भी चीज के मास है अर्थ की ग्रेविटी उसको हमेशा होल्ड अप करके रखती है। होल्ड अप का इन द सेंस कि भाई हमेशा उसके ऊपर ग्रेविटी लगाती है, राइट। सो इसका मतलब अगर एयर के मॉलिक्यूल्स के पास मास है तो दैट मीन्स उसके ऊपर ग्रेविटी भी वर्क करेगी, राइट। एंड अगर ग्रेविटी वर्क करती है तो इसका मतलब सारा का सारा जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब पूरा चारों तरफ से ऐसे होने चाहिए, क्योंकि उन सभी पे ग्रेविटी वर्क करेगी तो दे शुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ ऑलवेज, राइट। दे शुड बी डूइंग दैट, दे शुड मूव लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ ग्रेविटी का जो वर्क है, मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं, लेट्स से ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, राइट। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब भी हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो वहां पर इसका मतलब पूरा का पूरा जो डायरेक्शंस है, हर एक मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। दैट मीन्स सारी की सारी एयर शुड बी कंसंट्रेटेड, राइट। पूरा का पूरा एयर जो उसके चारों तरफ एयर है उस पर सभी पे फोर्स लग रहा है तो चारों तरफ से वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है ना। अब आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, राइट। सो दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। वो भी तो फोर्स लगाएंगे एंड इन रिटर्न। तो देखेंगे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएंगे, राइट। और वो टूवर्ड्स दी सरफेस पे आएंगे। देखिए पूरा सरफेस जो है वो कवर अप हो गया है एयर के मॉलिक्यूल से और उनके फोर्स से पूरा सरफेस कवर अप हो गया है। नाउ देयर इज फोर्स and there is the area, so it becomes the pressure and that is known as the atmospheric pressure because all the air around the earth is applying a force on the surface of the earth, right, and that's why there is a pressure over there, right. So you can see here the atmospheric pressure on the earth's surface at sea level. Sea level means this is the level of the sea जहाँ पर हम लोग मानते हैं कि हम सारे के सारे डिस्टेंस इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड हम हमेशा सी लेवल से मेजर करते हैं, राइट। एंड सी लेवल इज द बेसिक वन, ठीक है। तो हम सी लेवल की बात करेंगे इज 100,000 पास्कल, दैट इज 100 के पास्कल। ये मैंने आपको बताया था एटीएम जब हम यूनिट्स की बात डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो वी वर राइटिंग 1 ATM इक्वल्स टू हाउ मच
10 की पावर 5 पास्कल, एंड यू कैन से दिस k is for 1000, this k is for 1000, right? तो 100 into 1000 will give you 10 की पावर 5, है ना? 100 into 1000 will give you 10 की पावर 5, तो दैट मीन्स इट इज 10 की पावर 5 पास्कल, और यही तो हमने स्टडी किया था, यूनिट्स में पढ़ा था ना। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक, वो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली नोट इट डाउन, और फटाफट से आप लोग इस चीज को समझे दैट देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरी सिंगल टाइम ऑन यू। अभी भी तुम्हारे ऊपर एयर प्रेशर है, एंड आई विल टेल यू द ऑल द जो हमको एविडेंस मिले हैं, वो सभी एविडेंस मैं आपको बताऊंगी दैट इट इज ट्रू। Alright, now let's move on to the next step. Now tell me, the pressure at any point exerted by the weight of the air above is known as the atmospheric pressure. ठीक है, तो आप लोग ये बात बोलेंगे कि भाई जो भी प्रेशर है, एक पॉइंट पे प्रेशर है, उसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर जितना भी एयर है वो उसका प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वाली प्रेजेंट वाली जो एयर है वो उसे उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर कैलकुलेट होगा। तो देखो ये बच्चा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है इज देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माई हेड, वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्या सचमुच में मेरे सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड आपको क्या लगता है कि नहीं, मैंने अभी भी आपको बता चुका है पहले ही। सो दैट मीन्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप जरूर इसका आंसर हाँ बोलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो देखेंगे येस देयर इज प्रेशर अबव योर हेड, एंड लेट मी टेल यू हाउ। फर्स्ट आप इसका जो डेफिनेशन है वो नोट कीजिए, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that the pressure at any point exerted by the weight of the air above is known as the atmospheric pressure, right? Now let's move on to the next thing। देखो ये एक बॉय है, right? इस बॉय के सिर के ऊपर जो एयर का कॉलम है, ठीक है, जो एयर का यू कैन से सिलेंडर ऑफ द एयर है, एंड दैट एयर इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन इट्स हेड, राइट? तो देखो इस तरीका का प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली लग रहा है, दैट मीन्स अभी भी आपके सिर के ऊपर ऐसा है, ठीक है, अभी भी आपके सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दिस इज ट्रू। देखेंगे इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, अगर हम एक यूनिट एरिया को इमेजिन करें एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, ठीक है, और हमारे सिर के ऊपर पूरा बहुत ही बड़ा सिलेंडर जो है वो क्रिएटेड है और उसके अंदर एयर फिल है, ठीक है, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure, because इसके अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे ग्रेविटी उन पे एक्ट करके उनको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, राइट? एंड क्योंकि वो नीचे की तरफ आएंगे एंड देयर इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, तो वो क्या करेगा, सिर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, एंड दैट्स व्हाई सिर का एरिया और ऊपर से आ रहा है फोर्स, एंड दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर, एंड दैट्स नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो देखेंगे कि आपके सिर के ऊपर एग्जाम का प्रेशर तो है ही है, पढ़ाई का प्रेशर तो है ही है, लेकिन आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ठीक है, कंटिन्यूसली आपके सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? तो आप देख पा सकते हैं, लेकिन आपको फील नहीं होता, ये बिल्कुल भी फील नहीं होता। अभी भी आपको कहाँ पता है कि भाई आपको अब तक फील हो रहा था क्या? कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी आपको जब बताया गया है तब आपको फील होगा कि ओ यस, अभी हमारे सिर के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट, बट दिस इज वेरी मच ट्रू कि भाई सचमुच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ऑलराइट, दिस इज ट्रू। अब देखेंगे नेक्स्ट, हम चेक करते हैं डज इट रियली एग्जिस्ट, क्योंकि ठीक है सबने हमको बता दिया कि मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी आता है, लगता है, फोर्स रुकता है, ठीक है, एरिया होता है, एंड दैट्स हाउ अ प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर देयर। बट हम उसको चेक करेंगे, इज इट दिस रियली 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 ट्रू? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। देखेंगे हमें अभी क्या करना है, हमको सबसे पहले एक कैन लेना है, ठीक है, कैन जो कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक के कैन्स होते हैं, आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक अ टिन विद द टाइट फिटिंग स्टॉपर, आपको एक टिन कैन लेना है, ठीक है,
और उसका जो वो होता है, मतलब यू कैन से उसका जो स्टॉपिंग होता है, उसका जो टिप होता है जिसको हम क्लोज करते हैं, दैट शुड बी वेरी टाइट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि उसका जो कैप होता है दैट शुड बी वेरी टाइट, राइट। तो आप एक टाइट कैप वाला टिन कैन लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आपको उसका ढक्कन खोल के रखना है, उसका कैप खोल के रखना है, राइट। अभी क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी जो है वो गर्म होगा, क्योंकि आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया, राइट, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, गर्म होगा, एंड क्या होगा, सारा का सारा जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे। जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो वो क्या करेगा, टिन कैन के अंदर प्रेजेंट जितना भी एयर है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द एयर इस प्रोसेस में, मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो टिन कैन से बाहर चली जाएगी बिकॉज ऑफ दी वाटर वेपर्स, राइट। तो अभी देखो क्या होगा, हमने इसे बर्नर के ऊपर बर्न कर दिया, हमने इसे तब तक हीट किया, कीप ऑन हीटिंग अंटिल स्टीम स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जब तक कि जो है वाटर वेपर्स बनना शुरू नहीं हो जाते, सो दैट इट ड्राइव्स आउट मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम द टिन कैन। तो इससे क्या होगा कि जितना भी एयर प्रेजेंट है टिन कैन के अंदर वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा, बिकॉज वाटर वेपर्स उसका जगह ले लेंगे, ठीक है। एंड द रीजन इज कि सारा एयर बाहर चला गया एंड वाटर वेपर जो फॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे वो उसको उस टिन कैन के बाहर निकाल रहे हैं एयर के मॉलिक्यूल्स को, राइट। तो एयर का मॉलिक्यूल्स अब बहुत ही कम हो गए हैं टिन कैन के अंदर, राइट। अभी देखते हैं क्या करना है हमको, रिमूव द टिन कैन फ्रॉम द बर्नर एंड फिट द स्टॉपर एट इट्स माउथ टाइटली। अब आपको क्या करना है, जब ज्यादातर एयर, मोस्ट ऑफ द एयर टिन कैन से बाहर जा चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको उसका जो ढक्कन है, जो कैप है, उसको बहुत टाइटली बंद कर देना है, ठीक है। तो जब आपने बहुत टाइटली उसको बंद कर दिया है, अब उसको आपको क्या करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, रख देना है उसको ठंडा होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा आफ्टर सम टाइम टिन जो कैन है वो बहुत ही ज्यादा बैडली क्रश्ड हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। देखो नॉर्मल शेप उसका ये था, ठीक है, बट आफ्टर दैट दिस एक्सपेरिमेंट अब उसका शेप कैसा हो गया, बिल्कुल क्रश्ड हो गया, ठीक है। यू कैन सी दैट बहुत ही ज्यादा क्रश्ड और बहुत ही डिवास्टेटेड स्टेट में आ चुका है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज when tin cools, जब वो ठंडा हुआ, क्योंकि हमने उसे साइड में रख दिया, राइट, तो जब वो ठंडा हुआ, द स्टीम इनसाइड द टिन कैन कंडेंसेस, क्या हुआ, जो स्टीम थी उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, क्योंकि अंदर तो अब स्टीम भरी हुई थी, राइट, और तो मोस्ट ऑफ द एयर तो बाहर चली गई, राइट। तो आप देखेंगे कि जो टिन कैन है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, जब वो ठंडे होती हैं, यू डू नो कि वाटर वेपर्स में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, कंडेंस हो जाती है, राइट। तो जब कभी भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड दिस सेम थिंग हैपेंस हियर, क्या होता है कि भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्टेड थे, वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पूरा जो अंदर का फिलअप है, जो अंदर का स्पेस है, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, बुरी तरह खत्म हो गया, बिकॉज एयर भी नहीं है, ऊपर से जो वाटर वेपर्स हैं वो भी कंडेंस हो गए, वो भी लिक्विड स्टेट में आ गए, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट now there is nothing inside the tin can to balance the outside atmospheric pressure। अब अंदर कुछ भी नहीं है जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको बैलेंस आउट कर सके। सो बाहर वाले का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, अंदर कोई जो है वो फाइट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो दैट्स वाई वो उसको क्रश कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द क्रशिंग ऑफ द टिन कैन, राइट। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अंदर कोई भी एयर नहीं है, बहुत ही कम एयर है, ठीक है, और वो बेचारी फाइट नहीं कर पाएगी, किससे, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बिकॉज बाहर के चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि भाई यहाँ पर जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो अंदर का वाटर जो वेपर्स है वो कंडेंस हो गए, दैट मीन्स वो अपने गैसियस स्टेट छोड़ चुके हैं, अपना लिक्विड स्टेट में आ गए, तो लिक्विड स्टेट में वो नीचे आएंगे एट द बेस, ठीक है, बेस में इकट्ठे हो जाएंगे। सो जो उनका बाउंड्रीज है, जो ये बाउंड्रीज थे ना, ये वाली जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर अब इनके पास कोई लड़ने के लिए कोई टेक्निक नहीं बचा, राइट। अंदर का एयर भी नहीं है, वाटर वेपर्स भी नहीं है, तो कोई भी फाइटिंग करने के लिए अंदर नहीं बचा। दैट्स वाई बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्रश कर देगा, और दैट्स वाई इसका शेप बुरी तरह बिगड़ जाएगा,
ठीक है, एंड दिस इज द रीजन एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक कि भाई वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज द काइंड प्रूफ जो कि हमने टेस्ट आउट किया है बाय द एक्सपेरिमेंट, राइट. अब देखते हैं हम आगे दैट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से एक्ट करता है इस टिन कैन के ऊपर, वो उसको क्रश कर देगा. ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अगर ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाउ टू मेजर दैट, हाउ टू डू दैट. कैन यू सी दिस डायग्राम? आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, देखेंगे ये है एक कंटेनर. ठीक है, सो दिस इज अ बिग कंटेनर और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, मरकरी को फिल आउट किया. ठीक है, ऑल यू नो दैट मरकरी क्या होता है, एक सिल्वरी लिक्विड मेटल होता है. ठीक है, तो दिस इज द मरकरी. एंड अब हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया. ठीक है, वो ट्यूब कैसा था, एक तरफ से वन एंड पे वो क्लोज्ड है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप ले लो, टेस्ट ट्यूब में एक तरफ से वो क्लोज है, राइट, एंड दूसरे तरफ से वो ओपन है. ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से हम मेजर कर पाएंगे. नाउ लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. नंबर 1, an instrument used to measure atmospheric pressure is barometer. Now you have to remember that barometer is the instrument, is the name of this instrument जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. ठीक है, बताता है कि भाई कितना वैल्यू है उसका. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. It consists of a long glass tube which is sealed at one end. ठीक है, एक बड़ा लंबा आपको ग्लास ट्यूब लेना है जिसका वन एंड जो है क्लोज्ड है. ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर हमको फिल करना है मरकरी. ठीक है, इट इज फिल्ड विद मरकरी, अ सिल्वरी लिक्विड मेटल. ठीक है, मरकरी से हमने उसको फिल कर दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि भाई आगे हमको क्या करना है. The open end of the tube filled with mercury is placed in a small trough full of mercury. Now see, आपको क्या करना है, आपको एक ट्रो लेना है, उसके अंदर मरकरी फिल आउट करना है. ठीक है, लेट्स से हम लोगों ने एक ट्रो लिया है एंड हमने उसके अंदर मरकरी पहले से डाला हुआ है. ठीक है, पहले से उसके अंदर फिल है मरकरी, राइट. अब आप देखेंगे जब आप टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके अंदर भी आपको क्या करना है, मरकरी को डालना है. ठीक है, आप इस मरकरी को रखेंगे. ठीक है, आप उसके अंदर पूरा फिल करेंगे तो पूरा का पूरा ग्लास ट्यूब में मरकरी फिल हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट इन्वर्ट द ग्लास ट्यूब इन द बॉल. ठीक है, जो बाउल है जिसके अंदर हम लोगों ने मरकरी को रखा हुआ है, तो हमने इसको इस तरीके से बिल्कुल इन्वर्टेड रख दिया है कि ओपन एंड जो है वो मरकरी के अंदर चला जाएगा एंड जो क्लोज एंड है वो बच जाएगा, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो क्लोज एंड है ये ऊपर की तरफ है एंड दिस इज द ओपन एंड जो कि नीचे की तरफ है. ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, धीरे धीरे अब ऑब्जर्व ये करना है कि भाई धीरे धीरे ये जो मेटल है, सिल्वर कलर का मेटल है, ये नीचे आता जाएगा, स्लोली स्लोली नीचे आता जाएगा, राइट. अब आप देखेंगे नेक्स्ट वन कि भाई जिस तरीके से वो नीचे आया है, क्या हुआ है, द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मरकरी इन द ट्रो. जो ट्रो में मरकरी है उसके ऊपर एयर लगेगा, राइट, एंड इज एबल टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम. अब आप देखेंगे यहाँ पर जो दो एरोज आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर के एरोज, ये जो एरोज होते हैं ये सारे के सारे एरोज शो कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. अब क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा जो मरकरी है दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एनवायरनमेंट जो है प्रेशर लगाएगा एंड दैट्स व्हाई ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है, इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर से जो मरकरी है वो नहीं जा पाएगा. कुछ एक सर्टेन हाइट का जो मेंटेन करके रखेगा, कुछ एक सर्टेन हाइट को मेंटेन करके रखेगा. ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, इसका एक स्पेसिफिक है, क्यों, बिकॉज ये जो मरकरी है ये तभी इस बाउल के अंदर निकलेगा जब क्या होगा, उसको स्पेस मिलेगी. बट बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट कर रहे हैं तो वो उसको उतना स्पेस नहीं देते, राइट. सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस. नाउ अब हम देखेंगे कि अब जो एयर प्रेशर है, अगर लेट्स से हमने जिसे मेंटेन करके रखा है, दिस इज द बैलेंस स्टेट, राइट, दिस इज द बैलेंस स्टेट. जब क्या हो रहा है, एक हाइट मेंटेन है, ऑलरेडी एक हाइट मेंटेन है. नाउ व्हाट, अगर हम इसका ये वाला जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को डिक्रीज कर दे, लेट्स से समहाउ, लेट्स से आप इसको इसी पूरे सिस्टम को लेकर आप माउंटेन पे चले जाओ, राइट. तो जब हम माउंटेन पे जाते हैं, किसी ऊंची प्लेस पे जाते हैं, किसी एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है. ठीक है, तो अभी लेट्स से हम इसको लेकर चले गए तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मतलब कि ये जो पूरा प्रेशर इस पे लग रहा है वो कम हो जाएगा.
जैसे ही ये कम हुआ वैसे ही क्या होगा, ये जो पूरा लेवल है ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। वाई? बिकॉज उसको स्पेस आउट मिल जाएगी, वो उस बाउल में निकल जाएगा, एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से आप इसको ऐसी जगह लेके चले जाओ जहां पे आपने एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को और इंक्रीज कर दिया। अब आप खुद से सोचिए, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा, वैसे इसके ऊपर जो अंदर ट्यूब के अंदर जाने वाला जो मरकरी है वो और ऊपर चला जाएगा। सो हाइट इंक्रीजेस, यू कैन से जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है वैसे ही ये जो हाइट है ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा वैसे ही इसका हाइट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज सारा जो मरकरी है वो एक्स्ट्रा बाउल में निकल जाएगा, राइट। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पर आपको यही समझने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे, इन दिस वे द प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। कितना हाइट है मरकरी कॉलम का, वही चीज हमको बताएगी प्रेशर। ठीक है, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको वैल्यू लर्न करनी है वो ये लर्न करनी है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपको मेंशन करनी है। एंड यू शुड नो कि जब कभी भी हम लिक्विड प्रेशर को बात करते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर को हम लोग रिलेट करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी, mm ऑफ Hg। इट्स अ यूनिट। ठीक है, mm यानी मिलीमीटर ऑफ Hg। यू कैन सी हियर सी लेवल पर, अगर हम बात करें जीरो लेवल जिसे हम बोलते हैं, सी लेवल पर क्या होता है, ये जो हाइट है उसको हम 760 mm ऑफ Hg फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जब कभी भी आप Hg मीन्स क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, Hg दिस इज द साइन फॉर मरकरी। ठीक है, तो हम बोलेंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ यू कैन सी 760 mm, तो दैट मीन्स द हाइट इज सी लेवल पर, दिस इज द हाइट एंड दिस इज व्हाट 760 millimeter of mercury, right? So that is the new unit of pressure for you and that is the liquid pressure. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया and that was the very much good thing, है ना। चलो अभी हम आगे देखते हैं कि अगर एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता, मैंने अभी वैसे तो आपको बता दिया है, बट आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। दैट मीन्स कि भाई लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आप जैसे लेट्स से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक माउंटेन है। ठीक है, दिस इज द माउंटेन, दिस इज द माउंटेन और ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैंने ऐसा ड्रॉ किया है इसको। अब आप देखेंगे अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और ये माउंटेन है, तो यहाँ पर जब आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, ये है आपके सिर के ऊपर प्रेजेंट जो एयर कॉलम है, आपके सिर के ऊपर प्रेजेंट है, तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन योर हेड, राइट। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि अगर आप यहाँ पर चले गए, इस माउंटेन पे अगर आप चले गए, तो आपके ऊपर प्रेजेंट एयर तो कम हो गई, हुई कि नहीं हुई कम, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि आप हाइट पे चले गए। तो दैट्स वाई जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है कब, जब कभी भी हम लोग हाइट पर जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग जब कभी पे हाइट पे जाते हैं डिक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स से हम लोग क्या करें, तुम जैसे स्विमिंग करने गए, दिस इज द वाटर एंड यू गो हियर। ठीक है, नाउ यू आर इनसाइड, अब आपके ऊपर क्या है, इतना तो लिक्विड है एंड उसके बाद इतना सारा जो है एयर है। तो दैट मीन्स जब आप डेप्थ में जाते हो, जब आप बहुत ही कम हाइट पर जाते हो, ठीक है, सी लेवल से नीचे जा रहे हो, तब आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब आप हाइट पर जाएंगे इट वुड डिक्रीज, जब आप हाइट पर नहीं जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तब इट वुड इंक्रीज। ठीक है, बढ़ जाएगा वो। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप इन सभी को। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव दैट प्लेस। ठीक है, उस प्लेस के अबव जो एयर कॉलम है, वो एयर कॉलम कितना प्रेशर लगाता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दैट प्लेस। ठीक है, now let's talk about as we go up the length of the air column above us definitely decreases। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पे चढ़ते जाते हैं, लेट्स से माउंट एवरेस्ट पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऊपर जाते जाते बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
ठीक है, और दैट्स वाई वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से सभी लोग जो कि माउंटेनियर्स हैं, जो कि माउंटेन को पे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो वो लोग अपना खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, बिकॉज ऊपर हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, वहां पर आपको बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डू दैट। दिस मीन्स that its weight and the atmospheric pressure are smaller at higher places than at sea level. तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग, यू शुड डेफिनेटली नोट देम आउट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है, व्हाई इट इज जरूरी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर, आपको ये बात पता है कि भाई आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है, बहुत सारी पाइप्स हैं, ठीक है, ब्लड पाइप्स जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, राइट। ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता है, सही बात है। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लड की पाइप्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट्स से दिस इज द पाइप जिनको आप बोलते हैं बायो में ब्लड वेसल्स, ठीक है। लेट्स से भाई ये है आपकी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इसके अंदर से ब्लड फ्लो होगा, राइट। अब इसके अंदर से जब ब्लड फ्लो होगा तो क्या करेगा, वो ब्लड इस वेसल के चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ठीक है, चारों तरफ का जो उसका शेप है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बिकॉज इट इज मूविंग, है ना, ब्लड फ्लो कर रहे हैं। ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, आउटर बाउंड्री पे, वेसल की आउटर बाउंड्री पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी force and area that gives you the pressure, and that's why a blood pressure is among us, right। तो ब्लड प्रेशर जो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भाई जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है, हम ह्यूमंस में होता है बिकॉज द ब्लड आर इज फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी, है ना। इसी वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी होगा, बिकॉज दे ऑलवेज apply force on the boundary of the vessel and boundary has an area, that's why it is the blood pressure, all right। so ये जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये जो प्रेशर मेंटेन्ड है, वो प्रेशर अगर लेट्स से बाहर से कोई बैलेंस आउट नहीं करे, ठीक है, अगर बाहर से कोई प्रेशर को, इस ये जो ब्लड प्रेशर है, देखो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज द ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ये जो आउटर बाउंड्री है, अगर उस आउटर बाउंड्री पे बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगता, लेट्स से नहीं लगता, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो अंदर ब्लड के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल रप्चर द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सारी की सारी ब्लड वेसल्स ब्लास्ट हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई बाहर से कोई बैलेंस आउट करने के लिए प्रेशर नहीं था, अंदर से प्रेशर लग रहा है, ब्लड का प्रेशर लग रहा है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, पर बाहर से बैलेंस आउट करने का नहीं था। तो हमने टिन कैन देखा था ना, टिन कैन देखा था ना, हम लोगों ने क्या देखा था, जब अंदर से कोई उसको बैलेंस आउट करने के लिए नहीं था तो वो दब गया, बिल्कुल सही बात है। अब अगर कोई बाहर से बैलेंस आउट करने के लिए नहीं रहेगा तो वो फट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यही रीजन है कि अगर बाहर से कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो, हमारा जो अभी लग रहा है हम लोगों पे, अगर नहीं हो तो हमारी सारी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी एंड वी विल नॉट इवन एग्जिस्ट, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो देयर इज नीड, वहां पे जरूरी है ताकि हम एग्जिस्ट कर सके, ताकि हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस्ड आउट हो जाए बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हम लोग नॉर्मली अपना सारा काम करते रहे। Alright, so that is why this is needed. This atmospheric pressure is needed by us. देखेंगे, if the pressure of the atmosphere is removed suddenly, अचानक से अगर आपके आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हटा लिया जाए अचानक से, तो क्या होगा, our blood vessels and tissues will rupture due to the pressure of the blood and the other fluids inside. हमारे अंदर जो दूसरे फ्लूइड्स हैं, हमारे अंदर जो अदर चीजें हैं, उनकी वजह से उनका जो प्रेशर हम पे अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा एंड वी विल ब्लास्ट, वी विल रप्चर, राइट। नाउ यू कैन से thus the spacemen wear specialized suits as in space there is no air and no atmosphere। अब जैसे जब हम मून पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा और डिफरेंट स्पेस सूट पहन कर जाते हैं, राइट।
द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज अगर वो वहां गए और बाहर तो एयर ही नहीं है, बाहर तो स्पेस है, राइट? तो बाहर अगर एयर नहीं है, बाहर अगर वैक्यूम है, बाहर स्पेस है, कुछ भी नहीं है, सो दिस इज द रीजन कि बाहर एयर प्रेशर भी नहीं होगा, बिकॉज नो एयर प्रेशर, राइट? तो अगर बाहर एयर प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो दैट मीन्स हम अगर स्पेस में चले जाएं, ऐसे का ऐसा अगर हम स्पेस में चले जाएं, तो वी विल रप्चर, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, मतलब डेफिनेटली बढ़ जाएगा, बिकॉज वो प्रेशर बाहर की तरफ लगाएगा, तो इट वुड डेफिनेटली डू इट्स एंड हम लोग रप्चर हो जाएंगे. सो दिस इज द रीजन कि एक स्पेशल सूट उनको पहनना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मेंटेन रह सके उनके अंदर के ब्लड प्रेशर से, राइट? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हम लोग क्यों ऐसा सूट पहनते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई अगर ऐसा होता है, हम स्पेस में गए, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि भाई सारी एयर जो है स्पेस में चली जाती है और बाहर अगर एयर नहीं है, हमारी सिर्फ अर्थ के चारों तरफ ही एयर है, तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि भाई क्या होगा, या फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि एयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही है, वो स्पेस में गुम क्यों नहीं हो गई, वो स्पेस में क्यों नहीं चली गई? आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ? आपको ऐसा कभी सोचने में नहीं आया? हाँ, देखो, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि सब मॉलिक्यूल्स पे एयर जो है अपना ग्रेविटी का होल्ड बना के रखती है, सॉरी, अर्थ जो है वो अपना फोर्स हमेशा लगाती है और उसको हमेशा होल्ड करके रखती है. That's why all the molecules around us of the air are sticking to the inside. ठीक है, वो मतलब धरती के चारों तरफ ब्लैंकेट है, वो ब्लैंकेट बना हुआ है. The reason behind this is the force due to the gravity due to the earth. ठीक है, वो फोर्स जो लगाती है मॉलिक्यूल्स पे, that's why सारे के सारे जो है वहीं पर ही है, वरना वो अभी तक स्पेस में जा चुके होते अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती. अगर जो हमारी अर्थ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगाती, तो सारे मॉलिक्यूल्स एयर के वो बाहर जा चुके होते, बिकॉज अर्थ जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका तो नेचर यही है कि वो घूमते रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी जाते रहते हैं. सो वो बाहर चले जाते हैं और स्पेस में खो जाते हैं, और हमारे पास कोई भी एयर नहीं होती, राइट? तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि भाई अभी भी हमारे चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट क्यों है, क्योंकि अर्थ ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स लगा के रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग इनटू द स्पेस. ऑलराइट, now let's talk about the atmospheric pressure on the other planets. दूसरे planets पे भी होगा कि नहीं होगा? Now let me tell you the straight forward. अगर air है तो that means air pressure भी है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर किसी और planet पर कोई भी, let's say CO2 है, ठीक है, let's say कोई भी अदर गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन, लिक्विड, whatever, ठीक है, कोई भी अगर गैस अगर होती है, प्रेजेंट होती है, तो that means there has to be an atmospheric pressure. ठीक है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, वर्क होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू प्लैनेट जिनके ऊपर है. लेट मी टेल यू, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एज सुपर हॉट लिक्विड मेटल ऑन जुपिटर. जुपिटर के ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है, और कैसा? एज अ सुपर हॉट लिक्विड मॉडल जो मेटल है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है ऑन जुपिटर, एंड दैट्स व्हाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन जुपिटर इज वेरी 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 हाई. ठीक है, बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे. तो लेट्स से आप लोग कभी गलती से जुपिटर पे चले भी गए, तो विदाउट सूट्स यू विल नॉट इवन सर्वाइव देयर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीनस. वीनस के केस में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वीनस इज 90 टाइम्स एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. 90 टाइम्स ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द CO2. ठीक है, CO2 जो होती है उसकी वजह से इट इज अ वेरी मच डेंस, राइट? तो इसकी वजह से वहां पे वीनस पे क्या होता है, चारों तरफ, वीनस पे चारों तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है CO2. ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर किसी प्लैनेट के ऊपर एयर है, नॉट एयर बट वी कैन से एनी टाइप ऑफ गैस, अगर किसी भी प्लैनेट के ऊपर एनी टाइप ऑफ गैस है, तो दैट मीन्स वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. जैसे कि हमारे लेट्स से हम लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं, राइट? और एरोप्लेन क्या करता है, बहुत ही हाइट पर उड़ता है. हम लोगों ने अभी अभी ये चीज स्टडी किया है कि हाइट पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट? तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर तो प्रेशर बरकरार है, सेम टू सेम है, बट बाहर का प्रेशर कम हो गया, राइट? सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस,
एंड टू मेंटेन दैट बैलेंस आपके ईयर्स जो है वो पॉप होने लगते हैं, राइट। पॉपिंग ऑफ ईयर्स जिसको हम कहते हैं, जब कभी भी आप माउंटेन्स पे जाते हैं, किसी एक ऐसी प्लेस पे जाते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है, जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, राइट, तो एक पॉपिंग ऑफ ईयर्स एक फिनोमेना है जो वहां पर होता है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज टू मेंटेन द प्रेशर, राइट, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे अंदर का जो ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर है, राइट, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए देयर हैज टू बी अ पॉपिंग, ठीक है। तो वहां पर ऐसा होता है, तो आप डरिएगा मत, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एयर प्रेशर, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज दिस इज अ होवरक्राफ्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो होवरक्राफ्ट होता है ये वाटर में भी चल सकता है और ये लैंड पे भी चल सकता है। रीजन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देख पा रहे हैं दिस इज द रबर ट्यूब, एक बहुत बड़ी रबर ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है एयर फिल किया हुआ होता है। सो दैट्स वाई ये क्या करती है, लैंड पे भी चल सकती है और पानी में भी चल सकती है। सो इट इज अ, यू कैन से अ वेरी मच गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। It is a vehicle which can travel on ground or water without actually touching the surface. ये surface को touch भी नहीं करती है। Large fans are used to create an air cushion under the hovercraft. The pressure of the air cushion provides enough force to lift the hovercraft. बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं, वो चलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो इस होवरक्राफ्ट को अबव ऊंचा उठा देता है। एंड दैट्स हाउ इट मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी टचिंग द सरफेस। तो मतलब ये वाटर के भी सरफेस को टच नहीं करता और लैंड के भी सरफेस को टच नहीं करता, है ना। तो जब कभी भी ये मूव करता है तो ये क्या करता है, एयर प्रेशर का यूज करता है। सो इट इज अ वेरी मच गुड इनोवेटिव थिंग, है ना, बहुत अच्छा इनोवेटिव चीज है ये। देखेंगे कुछ और चीजें जिसमें भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिना सोचे समझे यूज करते हैं, दैट इज ड्रिंकिंग विद द स्ट्रॉ। कैसे, देखो, जब जो स्ट्रॉ है आपने जूस के अंदर डाल दिया, ठीक है, अब वो सिर्फ रखा हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जूस उसमें ट्रैवल नहीं कर पा रहा, उस पूरे के पूरे स्ट्रॉ में ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ट्रैवल वो कब करेगा, जब आप सक करेंगे, और जब आपने सक किया तो व्हाट हैपेंस, देखो, जो भी स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेजेंट था ना, आपने वो सक कर लिया। अब जैसे ही एयर हटा, राइट, एयर प्रेशर हटा, राइट, दैट्स व्हाई सारा का सारा लिक्विड आपके मुंह में, ठीक है। तो यही रीजन है कि भाई जो स्ट्रॉज हैं उनसे हम लोग ड्रिंक कर पाते हैं इजीली, बिकॉज वी सक आउट द एयर, राइट, एंड वी डिक्रीज द एयर प्रेशर एंड दैट्स व्हाई लिक्विड मूव्स अपवर्ड, ठीक है। देखेंगे वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर भी यही करता है, वो क्या करता है, सारा का सारा डस्ट को सक कर लेता है। दैट मीन्स वो एयर को सक कर लेता है, तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द वैक्यूम, राइट, वैक्यूम क्लीनर। देखेंगे सिरिंज में कैसे लिक्विड फिल किया जाता है। फर्स्ट दे हैव टू व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू पुल आउट द होल, जो उनका एक होल्ड होता है, ठीक है, जो उनका लेट्स से एक यू कैन से पिस्टन होता है, स्मॉल पिस्टन, उस पिस्टन को पहले वो क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर डाल के, वो जो सिरिंज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट उसको पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने से क्या होगा, अंदर जो भी एयर है, सिरिंज के अंदर जो भी एयर है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद वो उस जो उसकी जो सुई होती है, लाइक यू कैन से दिस मच निडल जो होती है, उसको लिक्विड के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, आप उस पिस्टन को पुल आउट कर दोगे। जैसे ही पुल आउट करोगे, सारा का सारा लिक्विड इस सिरिंज के अंदर फिल हो जाता है ना। तो ये रीजन हमने क्या किया, हमने पहले तो एयर सब निकाल दिया, एयर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, एंड दैट्स हाउ जो लिक्विड है वो कैसे मूव ऑन होने लगा, लिक्विड मतलब उस पूरी सिरिंज के अंदर मूव ऑन होने लगा, ठीक है। और सेम यही काम हम ड्रॉपर से भी करते हैं। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से सारा एयर बाहर निकल जाता है, एंड देन हम उसे प्रेस करे होते, मतलब प्रेस किया हुआ है और वैसे का वैसा ही हम उसको लिक्विड में जाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही सारा का सारा लिक्विड उस ड्रॉपर के अंदर आ जाता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ईजी हैं समझने के लिए, और इनमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल हमें पता भी नहीं चलता और हम यूज़ भी कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कितना अच्छी चीज़ है, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिक्विड प्रेशर डिस्कस करेंगे। हमने पहले तो प्रेशर डिस्कस किया, देन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग लिक्विड प्रेशर जो है स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। जितना ज़्यादा हो सके आप खुद भी स्टडी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो भी स्टडी करें फॉर देयर गोल्स, फॉर देयर बेटरमेंट, राइट।
So thank you so much for watching the video.